the supply capacity for exports. We have with us our Deputy Governor Murtaza Sahib, who is with you. He is in charge of monetary policy, in charge of research, and I hope you all are noticing the efforts we are making in improving the communication with regards to monetary policy. And Murtaza Sahib and his team are responsible for that. Murtaza Sahib is also the leader of our work on Roshan digital accounts. When we started that journey, I requested him to lead a team across different clusters in the State Bank to create Roshan digital account. Remember, 1 year ago, there was no such thing called Roshan digital account. So him and his team has been in the leadership on that and have brought that to you and are bringing many more things to you, which are going to be announced shortly. The latest member of our team, Seema Kamil Sahiba, we were thrilled when she decided to accept the State Bank's invitation and join our team. And I think she complements the team very well, because we have one Deputy Governor who has been with the State Bank for a long time. We have one Deputy Governor who is a leader in the area of research and economics who joined us from outside. And we have somebody who was the CEO of one of the largest banks and has had a distinguished career in the private banking industry and now bringing the private bank's perspectives into the State Bank. Seema Sahiba heads many things, but particularly I'd like to mention all the work being done on digitization. For instance, RAST, for instance, many other areas that we are working on. The work on construction and housing. And in addition, the work on SMEs and all these related areas where we are trying to improve financial inclusion. So for the PSX, I want to say that between the banking side, between the Roshan digital account side, between the construction SME side, you have the entire team of the State Bank of Pakistan available to you, and we are all keen that in the joint agenda, we continue to advance the work that we're doing together. दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता था, that is on the economic outlook. And especially I want to put it in the context of the rising wave of COVID, of the fact that we have, after a pause, restarted the IMF program. और इस पे ज़ाहिर है लोगों के सवालात वगैरह होते हैं कि अब आउटलुक हमारी मईशत की क्या है. So पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये थर्ड वेव है कोविड की. एंड एक साल पहले कोविड की पहली लहर शुरू हो रही थी. पहली लहर के शुरू होने में और इस लहर के शुरू होने में एक बुनियादी फ़र्क है, और मेरे ख्याल से दैट्स द फर्स्ट रीज़न व्हाई एवरीबडी हु इज़ इन द इकोनॉमी कैन हैव अ बिट मोर कॉन्फिडेंस दैन लास्ट टाइम अराउंड. वो बुनियादी फ़र्क ये है कि एक साल पहले जब हमने कोविड एंटर किया तो हमारी इकोनॉमी के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो एक स्टेबलाइजेशन के फेज से रिकवर कर रहे थे और कम थे, क्योंकि कोविड से पहले हमें स्टेबलाइजेशन करनी पड़ी थी और हर स्टेबलाइजेशन में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है. लेकिन आज जब हम कोविड एंटर कर रहे हैं तो जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो अदाद व शुमार हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि वो क्या है. सबसे पहले द लेटेस्ट फिगर दैट वाज रिलीव टुडे आपने देख लिया होगा रिगार्डिंग रेमिटेंसेस. प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज सुबह ट्वीट की, पिछले महीने वी हैड $2.7 बिलियन इन रेमिटेंसेस. अगर आप इसको एक साल पहले से कंपेयर करें तो दैट्स अ ग्रोथ ऑफ 43% ईयर ऑन ईयर. और अगर आप ईयर टू डेट देखें तो हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो 26% बढ़ी इस साल, और अभी ईद आने वाली है और हिस्टोरिकली ईद में रेमिटेंसेस और भी बढ़ती हैं. तो जो पहले लोगों को फिक्र होती है रिगार्डिंग आवर फॉरेन एक्सचेंज आउटलुक एंड सो फोर्थ, वी हैव टू थैंक आवर ओवरसीज पाकिस्तानीज फॉर द अनपैरेलल्ड ग्रोथ दैट वी आर सीइंग इन आवर रेमिटेंसेस. ये पहला फ़र्क है बिटवीन फर्स्ट वेव एंड द थर्ड वेव राइट नाउ. मोर इम्पोर्टेंटली हमारी रियल इकोनॉमी का क्या हाल.
So let's begin with the large scale manufacturing index. Most recent number is 9% year on year growth in January of this year. उससे एक साल पहले, आज से एक साल पहले अगर ये सेरेमनी हो रही होती तो we would have been saying कि LSM growth was negative 5.7%. यानी कि थर्ड वेव हम एंटर कर रहे हैं प्लस 9.1% पे, और पहली वेव जो हमने एंटर की वो माइनस 5.7% पे एंटर की। ईयर टू डेट अगर हम देखें तो LSM में क्या ग्रोथ रही है 7.85%, और ईयर टू डेट पिछले साल क्या ग्रोथ थी नेगेटिव 3.2%। दूसरी चीज़, कुछ और इंडिकेटर्स, सीमेंट सेल्स, because cement is not only being used for construction and housing but also for exports. Cement का जो latest number मार्च का is a growth of 44% year on year. We should think about that, 44% growth year on year cement की. That comes to a figure of 5.4 million tons in March of 2021. ये क्यों important है? इसलिए क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है दैट a lot more now than it was 1 year ago when we entered COVID. एक और रियल इकोनॉमी का सेक्टर ले लें, ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में अगर आप देखें, सो इफ़ यू लुक एट द सेल्स ऑफ पर्सनल कार्स year and year they have risen 35% in February. February was before COVID last year. 35% in February, and year to date they are up 23%. इन्हीं नंबर्स को अगर आप पिछले साल देखें तो आप देखेंगे कि ये सारे नंबर्स जो थे इससे बहुत कम थे। इसके बाद स्टेट बैंक ये खुद इंडेक्स बनाता है ऑफ ऑल FMCG goods, fast moving consumer goods, because it's a good indicator of demand कि उसमें कितना मोमेंटम। हमारी ये जो इंडेक्स है इसकी ग्रोथ जो सेकेंड क्वार्टर इस फिस्कल ईयर का ख़त्म हुआ है, देयर वाज 17.8% ग्रोथ नॉमिनल टर्म्स, और अगर आप उसको रियल टर्म्स में देखें, प्राइसेस से डिफ्लेट करें, तो दैट ग्रोथ कम्स टू 8.7% इन द सेकेंड क्वार्टर। और अगर आप इसको एक साल पहले का नंबर देखें, सो दैट वाज अ डिक्लाइन ऑफ 3.5%। तो मेरे कहने की मुराद ये थी कि चाहे आप सप्लाई साइड इंडिकेटर्स देखें जो मैंने बताए, LSM, सीमेंट, ऑटो, या आप डिमांड साइड इंडिकेटर्स देखें, FMCGs और दूसरे इंडिकेटर्स, तो दोनों साइड पे आपको एक वो मोमेंटम नज़र आ रहा है जो पिछले साल नहीं था। पिछले साल ये सारे इंडिकेटर्स रेड में थे, इस साल ये सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। और अगर आप FMCG की रियल ग्रोथ देखते हैं 8.7, तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी इस साल की GDP ग्रोथ और अगले साल की GDP ग्रोथ में क्या मोमेंटम होएगा। सो पहला जो पॉइंट है वो मैं ये बताना चाहता था कि इस दफ़ा ये जो वेव आ रही है अल्लाह के करम से वी आर एंटरिंग विद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोमेंटम। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता था कि ये इन एडिशन टू द गुड ग्रेसेस ऑफ द ऑलमाइटी, इसमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने किरदार अदा किया कि पहली वेव से अपने मुल्क को निकालें एक अच्छे अंदाज में, एंड व्हाट वाज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिस्कल साइड एंड द मॉनेटरी साइड, बिकॉज वो भी एक बड़ी अहम स्टोरी है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू कन्वे। जब पहली वेव आई कोरोना की और अभी भी एक जो हमारे पास चैलेंज है वो ये है हमारी डेट का। पब्लिक डेट जो है हमारी बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बाय इमर्जिंग मार्केट स्टैंडर्ड्स, इट इज़ हाई। देयरफॉर उसके हाई होने की वजह से वी हैड अ कंस्ट्रेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव अ लार्ज फिस्कल स्टिमुलस, क्योंकि अगर आप ऐसा एक फिस्कल स्टिमुलस देते हैं कि जिससे डेट और बढ़ जाती है तो फिर लोगों की तरफ से ये कंसर्न भी आ सकती है कि ये कर्ज़े वापस कैसे होंगे, इसलिए उसको नज़र में रखना। फर्स्ट स्टेप देयरफॉर
was that on the government side, there was a very good recalibration of spending. اسٹاک مارکیٹ اور بینک کا اشتراک اہم ہے. معاشی بہتری کے لیے اپنا کردار جاری رکھیں گے. معیشت کے استحکام کے لیے درست سمت کی جانب گامزن ہیں. کرونا وبا کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں متاثر ہوئیں. صنعت اور تعمیرات کے شعبے میں نمایاں کام جاری ہے. ترسیلات زر 26% ہیں اور ان میں مزید